Good morning, students. We are studying chapter cell cycle and cell division. So, what is cell cycle? The various events in which a cell duplicates its genome, means replica of the gene will be formed. Then synthesis of the other constituents of the cell will take place, and eventually the cell will divide into two daughter cells. All these events together form cell cycle. So now what are the phases of cell cycle? The phases of cell, if we talk about a eukaryotic cell, and cell cycle, it is illustrated by human cells in culture, because eukaryotic means the advanced cells and human being is the most complex. So for representing a typical eukaryotic cell, example of human cell is considered. Now these cells, if we talk about their time of division, they divide every 24 hours. But if we talk about the actual cycle duration of the cell cycle, that can vary from organism to organism and also from the cell to cell type. For example, yeast, its cell cycle is completed only in 90 minutes. And if we talk about the phases, there are two basic phases of the cell division. First is interphase and the second is mitosis phase or mitosis, amphase. Amphase or the mitosis phase. This is the actual phase where the actual cell division or mitosis occurs. And in the interphase, it represents the phase between two successive amphase. यानी एक माइटोसिस हुआ, उसके बाद जो सेकेंड माइटोसिस होना है उसके बीच की फेज को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस. एंड इट इज़ सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन, हमने क्या पढ़ा कि जो नॉर्मल सेल है वो 24 आवर्स में डिवाइड होती है, और अगर हम निकालें इसका एवरेज तो सेल डिवीजन जो है वो एक्चुअल सेल डिवीजन दैट टेक्स प्लेस फॉर ओनली वन अबाउट एन आवर, और बाकी का जो 95% जो पार्ट है सेल साइकिल का ड्यूरेशन, दैट इज़ फॉर इंटरफेज. नाउ एमफेज, what will happen in amphase or the mitosis phase? Nucleus will divide and then separation of daughter chromosomes will take place, and that is called as karyokinesis. Karyo means nucleus, kinesis means division, and there are chromosomes present in the nucleus. So what will happen? Nuclear division will take place, और उससे जो daughter cells हैं वो nucleus, daughter chromosomes वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे. And then it ends with the division of cytoplasm, means there will be then division of cytoplasm. ये तो बात हुई माइटोसिस फेज की. और इंटरफेज, जिसे हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, ये वो टाइम है जिसमें एक सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है. सो किस तरह प्रिपेयर करेगी? It will undergo growth also and DNA replication will also take place. So in interphase, DNA replication and the growth of the cell takes place. This interphase, it is divided into three further phases. First is G1 phase, that is gap 1, then S is synthesis phase, and then G2 phase, gap 2. Now what is G1 phase or gap 1? It is the time interval between mitosis and initiation of DNA replication. क्योंकि हमने क्या पढ़ा? दो माइटोसिस के बीच में जो स्टेज होती है दैट इज़ इंटरफेज, और इंटरफेज के अंदर ही क्या होता है? सेल अपने आप को ग्रो भी करती है और डीएनए रेप्लिकेशन भी करती है. सो G1 फेज इंटरफेज का पार्ट है. यहाँ ये वो टाइम है जो कि इट इज़ बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. माइटोसिस कंप्लीट हो गया, डीएनए को अब रेप्लिकेट होना है इंटरफेज में, लेकिन अभी फर्स्ट इनिशिएशन होगा, यानी शुरुआत होगी, रेडीनेस होगी किसकी? दिस डीएनए रेप्लिकेशन की. सो दिस इज़ नोन एज G1 फेज. यहाँ जो सेल होगी दैट इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव इन G1 फेज. देन बिकॉज ऑफ बीइंग मेटाबॉलिकली एक्टिव इट ग्रोज कॉन्टिन्यूसली बट इट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए. सिर्फ सेल ग्रो कर रही है और इनिशिएशन, शुरुआत होने वाली है डीएनए रेप्लिकेशन की, बट डीएनए रेप्लिकेशन हुआ नहीं. देन द नेक्स्ट फेज इज एस फेज और द सिंथेसिस फेज. ये वो पीरियड है, इट इज़ द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस. यानी G1 फेज में सेल जो है उसने अपने डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए इनिशिएशन लिया. एस फेज में एक्चुअल जो है सिंथेसिस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, और यहाँ पर किस तरह होगा? जो अमाउंट ऑफ डीएनए है दैट विल गेट डबल्ड. इफ़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C, then it increases to 4C because it is doubled.
and however there is no increase in the chromosome number. Yes, chromosome का number that is fixed for the particular species, so there will be no increase in the number of chromosomes, no change in the number of chromosomes, but the change will be in the जो इनिशियल जो डीएनए है, डीएनए का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है. If the cell is haploid or if the cell is diploid, diploid means 2n, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स G1 फेज में. आफ्टर एस फेज भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो क्या रहेंगे, 2n रहेंगे, क्योंकि जो इंटरफेज है, इंटरफेज के एस सिंथेसिस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सो अमाउंट डबल हो जाएगा, लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है दैट विल रिमेन सेम. देन इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज, सिंथेसिस फेज, जो डीएनए रेप्लिकेशन है इट विल स्टार्ट इन द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद देन द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स. देयर इज़ अ स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल दैट इज़ कॉल्ड एज सेंट्रियोल, जो कि प्लांट सेल में नहीं होता. और जो सेंट्रियोल है इसका रोल क्या है कि ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है. सो ड्यूरिंग द एस फेज यानी सिंथेसिस फेज, जब डीएनए को रेप्लिकेट होना है इट विल स्टार्ट इन द न्यूक्लियस, और जो सेंट्रियोल है इट डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए की डुप्लीकेशन हो रही है, रेप्लिका कॉपी डबल हो रही है, और जो है साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो रहा है. नाउ द थर्ड फेज of the interphase is G2 phase, where what will happen here, proteins will be synthesized, and these proteins are required for the preparation for mitosis. क्योंकि सेल का जो ग्रोथ है वो कॉन्टिन्यूसली होता जा रहा है, माइटोसिस हो रही है, सो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, एंड दीज प्रोटीन्स दे आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग G2 phase. नाउ इन सम सेल्स इन एडल्ट एनिमल्स, जो एडल्ट एनिमल्स की सेल हैं उनके अंदर जो है डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती है. फॉर एग्जांपल हर्ट सेल्स, दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू एग्जिबिट डिवीजन, एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली. मीन्स सम सेल्स आर वेरी एक्टिव, दे कीप ऑन डिवाइडिंग. some cells are like which do not divide, and there are some cells which divide only occasionally, जब उनको ज़रूरत होगी, if there is any injury, if there is any नीड ऑफ चेंज, कुछ जो है कोई किसी चोट के कारण उस एरिया में सेल्स को रिप्लेस करना है, देन दो सेल्स विल डिवाइड. सो जो सेल्स बिल्कुल डिवाइड नहीं होती हैं दे क्या करेंगी, दे विल फर्दर एग्जिट G1 फेज़. अब वो G1 फेज़ को लीव कर देंगे, क्योंकि G1 फेज़ का फेज़ क्या है कि G1 में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है. सो ये जो फेज़ है इट इज़ बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. तो जिन सेल्स ने डिवाइड नहीं होना है वो G1 फेज़ का पार्ट नहीं बनती हैं, और वो एक इनएक्टिव स्टेज में एंटर कर जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज क्विसेंट स्टेज और G नोड ऑफ द सेल साइकिल. एंड दीज सेल्स दे विल रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट. लेकिन प्रोलिफरेशन यानी डिवीजन नहीं होगा जब तक कि उस इन्वायरमेंट को, उस ऑर्गेनिज़म का जो इन्वायरमेंट है या ऑर्गेनिज़म को उसकी ज़रूरत ना हो, तब तक ये सेल्स जो हैं डिवाइड नहीं करेंगी. देन इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज सीन ओनली इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स. डिप्लॉयड सेल्स होंगी, 46 chromosomes are present suppose in human beings, then during the mitosis the number of chromosomes will remain same. But plants can show mitotic division in both haploid and diploid cells. But plants के अंदर mitotic division haploid cells में भी है, diploid में भी है. If it is taking place in haploid, then the number of chromosomes will remain haploid only after mitosis, और diploid है तो number of chromosomes double रहेगा. So this is about the phases of cell cycle. Now first M phase, that is called as metaphase. Interphase को हमने पढ़ लिया, that it is divided into 3 sub phases. G1 phase, then resting phase is there, that is called synthesis phase is there, that is called as S phase, and then G2 phase. Now M phase or the mitosis phase. This mitosis phase, it is the most important part of the cell cycle, and here there will be reorganization of the components of cell. Cell has divided, now it will reorganize its components,
and as the number of chromosomes in the parent and the progeny. In the new generation and the parent is same because mitosis has taken place, same number of chromosomes are there. So this division is also called as equational division. And दो for our convenience mitosis को हम जो है फर्दर डिवाइड कर देते हैं 4 स्टेजेस के अंदर, बट यहाँ पर हमने क्या याद रखना है कि इट इज़ अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस. मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही सेकंड स्टेप होगा. हम अपनी स्टडी के लिए इसे स्टेप वाइज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अदरवाइज जो है सेल विल कीप ऑन डिवाइडिंग. सो दिस डिविजन इज़ अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस. हम ये नहीं कह सकते कि अभी ये हो रहा है देन दिस विल टेक प्लेस. प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस कॉन्टिन्यूसली, बट टू मेक आवर स्टडी ईजियर हमने उन्हें डिफरेंट स्टेप्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है. सो 4 phases ऑफ माइटोसिस आर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. So if we talk about the prophase, this is the first stage of mitosis. Follows the S and G2. सबसे पहले क्या हुआ, G1, then S phase, then G2 phase. यानी S और G2 phase के बाद क्या आता है, कौन सी किसकी हैं ये सब फेजेस, इंटरफेज की. उसके बाद प्रोफेज स्टार्ट हो जाता है. In the S phase and G2 phase, new DNA molecules formed are not distinct but intertwined. हम क्या देखेंगे, रेप्लिका हो गई है DNA की, लेकिन वो आपस में उलझे हुए हैं, इंटरवाइंड हैं. प्रोफेज क्या करेगा, इट विल इनिशिएट द कंडेंसेशन ऑफ दिस क्रोमोसोमल मटेरियल. जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं वो कंडेंस हो जाएंगे, अनटैंगल्ड हो जाएंगे. जो पहले उलझा हुआ ऊन जैसा लगता है, इट बिकम्स अनटैंगल्ड. क्रोमेटिन कंडेंसेशन बोल सकते हैं हम इस स्टेज को. सेंट्रियोल जिसका डुप्लीकेशन हुआ था, नाउ इट विल ट्राई टू मूव और बिगिन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स. एंड द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज में ये डिफरेंट चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे. फर्स्ट क्या है, मटेरियल, क्रोमोसोमल मटेरियल इज गेटिंग कंडेंस्ड टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स. देन क्रोमोसोम्स जो हैं they will have 2 chromatids. If we study the structure of a chromosome, these 2 arm-like structures, these are the chromatids. So these are made of chromatids and in the center centromere is present. Now initiation of assembly of mitotic spindle. Spindle fibers form हो रहे थे जो spindle, then the microtubules, proteinaceous component of the cell in the cytoplasm. All these things try to meet the need of the cell, that is prophase. The next phase is metaphase, which we will continue in our next class.